Hello students, Standard 10, Subject Social Science, Chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness, Session 7. Now students, today we will discuss about the last concept of this chapter 18, which is also very much important from the examination point of view for 3 to 4 mark questions. So measures of consumer protection, that which are the way through which a consumer can be given protection against the different malpractices, black marketing, hoarding, profiteering, or other way of exploitation which consumer faces in the market. So what are the measures that government has designed or set up in order to provide protection to the consumer? The following four types of measures have been undertaken for the consumer protection. First, a three-tier tribunal court, right? Three-tier means a tribunal court system which is having a three level. Okay. Under National Consumer Protection Act 1986, Central Consumer Protection Council, which is named as now National Consumer Commission, that was set up. Similarly, the State Consumer Forum has been set up at a state level. Now, under the three-tier system or a tribunal court system to provide justice to the consumer, at state level, State Consumer Forum has been set up. Under these commissions, laws for consumer protections are framed, and the National Consumer Dispute Commission has created the structure of three-tier court and framed norms, that means rules and regulations for actions of consumer forum or commission कि कंज्यूमर्स को नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और उनके डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल तक जो भी प्रॉब्लम्स हो एज अ कंज्यूमर, उनके साथ जो भी चीटिंग, एक्सप्लॉइटेशन, फ्रॉड वगैरह हुआ हो, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट सिस्टम को फॉलो करते हुए जस्टिस की डिमांड कर पाए. इसलिए नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नेशनल कंज्यूमर कमीशन और यू कैन से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड हुई, जिसमें एक थ्री टियर सिस्टम को एस्टेब्लिश्ड किया गया और गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए, जिसके थ्रू कंज्यूमर को एक प्रॉपर जस्टिस दिया जाए. Now the first part, district forum. Under the three-tier system, the first one is district forum. Generally, there is one court in every district, which is a very important court from the point of view of consumer redressal. कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग होता है तो उनके लिए कंप्लेंट करने के लिए और जस्टिस डिमांड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अरेंजमेंट्स हुआ है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, विच इज अ काइंड ऑफ कोर्ट and which is available at every district of India's states. It studies the complaint of the consumers and give compensation to the consumer against the losses. That whatever complaint the consumer is having, they want to represent, that will be heard at a district level by the district forum. और जो भी कंप्लेंट्स होगा उसको सुनकर उसमें जस्टिस देते हुए कंज्यूमर को जो भी फाइनेंशियल या फिजिकल लॉस हुआ होगा उसको वो लोग कॉम्पनसेट करवाते हैं. Approximately 571 consumer district forum are working in our country. Circle the number 571. It can be asked in exam as an objective. In these courts, presently, the claim for the compensation up to 20 lakh are filed after paying the decided fees. इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एज अ कंज्यूमर आपके साथ जो भी चीटिंग या फ्रॉड या आपका जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, या तो आपका फिजिकल और या तो फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, और आप उसके सामने कंप्लेंट कर रहे हो, अगर आपकी उस कंप्लेंट में आप जो कॉम्पनसेशन जो मांग रहे हो
नुकसान की जो भरपाई आप चाहते हो कंपनी से, अगर वो कॉम्पनसेशन आप 20 लाख तक का क्लेम करते हो, कि आप जो डैमेज लॉस है वो 20 लाख तक का अगर आप मांग रहे हो, इन दैट केस यू कैन रजिस्टर योर केस इन अ डिस्ट्रिक्ट फोरम। कि 20 लाख तक का अगर कंज्यूमर कॉम्पनसेशन मांग रहा है तो वो केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में रजिस्टर्ड हो सकता है आफ्टर पेइंग द बेसिक प्रोसेसिंग फीस। If the petitioner means a person who is filing the case, right? जो केस करता है वो petitioner कहलाता है। If the petitioner is not satisfied with the decision of the district forum, he may file a complaint in the state commission within the next 30 days. स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट सिस्टम है वो 3 टीयर का है, 3 लेवल का है। तो सबसे नीचे के लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके ऊपर स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है, और उसके भी ऊपर नेशनल या सेंट्रल लेवल पर नेशनल कमीशन है। तो जैसे अपने रेगुलर जुडिशरी सिस्टम में होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह यहाँ पे भी 3 लेवल एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं। तो अगर कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में से आए हुए डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आने वाले 30 दिनों में, जिस दिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम में से डिसीजन मिल जाए, उसके नेक्स्ट 30 डेज में वो अपने इस कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर जो लेवल है ट्रिब्यूनल कोर्ट का यानी स्टेट कमीशन, वहां पे 30 डेज में अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं फिर से। बट बिफोर दैट ही हैज टू पे आइदर 50% अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्लेम्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। और ये करने के, ये कंप्लेंट करने के पहले उन्हें जो भी कॉम्पनसेशन उन्होंने क्लेम किया होता है उसका 50% अमाउंट जो कॉम्पनसेशन क्लेम का है वो, या 25,000 जो भी लेस हो, वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट फोरम में जमा करवाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड लेवल, स्टेट कमीशन, और यू कैन से द स्टेट फोरम। Approximately 35 state forums are working recently in our India. In these courts, presently the claim of compensation from 20 lakh to 1 crore are filed after paying the decided fees. कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक का कॉम्पनसेशन केस है तो वो वहाँ रजिस्टर्ड होता है। अब 20 लाख से ज़्यादा कॉम्पनसेशन मांगा गया है और 1 करोड़ से लेस है, कि मोर देन 20 लैक्स एंड लेस देन 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन अगर मांगा गया है तो उस केस में वो केस स्टेट कमीशन में रिप्रेजेंट हो सकता है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम से कोई डिसीजन आया था और उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वो केस भी स्टेट कमीशन में या तो स्टेट फोरम में डिस्कस किया जा सकता है। इफ द पेटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, समझो यहाँ कंप्लेंट की, यहाँ पे डिस्कशन हुआ, यहाँ पे केस चला और डिसीजन दिया स्टेट कमीशन ने, फिर भी कंप्लेंट करने वाला पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, अगेन ही इज रेविंग अ राइट दैट आने वाले 30 डेज में वो नेशनल कमीशन जो सेंट्रल लेवल पर है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाए। तो 30 डेज का फिर से टाइम है। यहाँ पे बस इतना करना होगा कि उसके पहले उसे जो भी कॉम्पनसेशन उसने मांगा था उसका 50% या तो 35,000, दोनों में से जो लेस अमाउंट हो वो लेस अमाउंट उसे पहले स्टेट कमीशन में सबमिट करना होगा और फिर नेक्स्ट 30 डेज में वो नेशनल कमीशन में अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। नाउ द थर्ड एंड द टॉप मोस्ट लेवल in the Consumer Protection Council, National Commission or a National Forum. Compensation claim above 1 crore, 1 करोड़ से ज़्यादा का compensation अगर मांगा गया हो, could be made here by paying the decided fee. This commission is the bench of 5 members. Bench of means committee or a group of. तो क्या नेशनल कमीशन में 5 मेंबर्स का टीम होता है और 1 करोड़ से ज़्यादा का compensation मांगा गया हो, उस टाइप के केसेस नेशनल कमीशन में डायरेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन शुड गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग द केस। स्टेट कमीशन के लिए भी और नेशनल कमीशन के लिए भी कंज्यूमर का जो भी केस रिप्रेजेंट हुआ है उसमें डिसीजन देने के लिए एक स्पेसिफाइड डेट फिक्स की गई है कि एज अ कंज्यूमर हम अगर अपना केस आज प्रेजेंट करें, राइट,
तो आने वाले 90 डेज में कंपल्सरीली नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन को अपना डिसीजन दे देना होगा. If the petitioner is not satisfied with the decision given in the National Commission, he may file the case finally in the Supreme Court within the next 30 days. 3 tier सिस्टम जो है या तो ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उसमें टॉप लेवल पर सेंट्रल नेशनल कमीशन आता है, बट ये एक जुडिशरी सिस्टम है, यहाँ ये एक न्याय प्रणाली है और इस वजह से इंडिया के हर एक जुडिशरी सिस्टम में एट दी एंड टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट. और इस वजह से यहाँ पे भी कंज्यूमर को एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर नेशनल कमीशन से आने वाले डिसीजन से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, इन अपकमिंग नेक्स्ट 30 days they can file their case in the Supreme Court, which is the topmost judiciary system of our India. यहाँ पे भी वापस यही है, बट सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर करवाने से पहले जो भी कॉम्पनसेशन मांगा गया था उसका 50% या तो 50,000 जो भी लेस हो वो अमाउंट सबमिट नेशनल कमीशन में करना होगा. If the person does not comply the order given by any court, he could be given punishment or penalty for or both of them. अगर कोई पर्सन ट्रिब्यूनल कोर्ट के थ्रू आया हुआ डिसीजन या तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया हुआ डिसीजन फॉलो नहीं करता, उसे फुलफिल नहीं करता, तो उसे फाइनेंशियल पनिशमेंट और जेल भी हो सकती है या तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. People below poverty line, senior citizen, handicapped person are exempted from paying the fee under certain conditions. कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वहाँ पर केस रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो भी फीस वगैरह पे करनी पड़ती है उसमें कुछ लोगों को एग्जेम्पशन यानी फ्रीडम दिया है कि वो फी नहीं पे करेंगे तो भी चलेगा. और उसमें कौन आता है? पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, सीनियर सिटीजन लोग और कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विस अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस गाइडेंस और लीगल एड एंड एडवोकेट. और फी भी माफ हो जाएगी और सामने से उन्हें एक लीगल एडवाइजर, एक एडवोकेट भी दिया जाएगा जो उनके लिए केस कमीशन में और फॉरम वगैरह में रिप्रेजेंट कर पाए. Now second section, consumer society, that is consumer protection council. As per this act, government recognized consumer societies have been established at तालुका, district, state और national level. कि कंज्यूमर को जस्टिस दिलवाने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट को रिप्रेजेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट ने तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अलग से कंज्यूमर सोसाइटीज भी फॉर्म की है जिनको गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है. द कंज्यूमर सोसाइटीज और द काउंसिल्स आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल एंड वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द कंज्यूमर देमसेल्व्स. कि कुछ एजुकेटेड अवेयर्ड कंज्यूमर्स होंगे, वो आपस में अपना एक ग्रुप बनाकर इस टाइप के कंज्यूमर सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं. और जो भी ये कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म्ड होगी वो किसी पॉलिटिकल ग्रुप को, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रमोट नहीं करेगी, कोई कंपनी या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट नहीं करती. दिस इज़ अ वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर अपनी मर्जी से एक ग्रुप इकट्ठा करके दूसरे कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए रन करते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज कंज्यूमर सोसाइटी इज टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड एनकरेज देम टू हेल्प गवर्नमेंट to frame the policy or to protect from time to time. The main objective to frame or design such kind of consumer society is that consumer society जो भी बनती है उनका सिर्फ एक मेन पर्पस होता है कि जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के कंज्यूमर्स है उनमें अवेयरनेस आए, वो अपने बेसिक कंज्यूमर राइट्स के बारे में जाने, उसे समझे, उसका यूज़ करना सीखे. उन्हें जब भी प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो तो कंज्यूमर सोसाइटी का सपोर्ट लेकर उन एक्सप्लॉयटेशन और कंप्लेंट के सामने लड़े. और गवर्नमेंट जब भी कंज्यूमर के लिए कोई नई रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी बनाना चाहे
तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दे। यही मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर सोसाइटी का। इट कीप्स ऑन रिव्यूइंग प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट। दे ऑल्सो गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द नीड टू चेंज द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। बीतते समय के साथ जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हो रही है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द नीड अगर कंज्यूमर के बेनिफिट और फ़ायदे के लिए कोई न्यू रूल्स रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत हो तो उस टाइप के सजेशन भी कंज्यूमर सोसाइटी गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करती है। दिस कंज्यूमर सोसाइटी प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम which provide guidance on the main subject like rights of consumer, duty, exploitation in a different way and how to be saved from exploitation। कि जिन टॉपिक्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि विच आर द वे बाय विच द कंज्यूमर इज गेटिंग अप एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है, कौन से कंज्यूमर के राइट्स है, एज अ कंज्यूमर आपकी कौन सी ड्यूटी है, ये सभी के ही बारे में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। द कंज्यूमर सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश मंथली, बाई मंथली मैगजीन्स और पीरियडिकल्स लाइक ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच एटसेट्रा टू एंड ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस। कि कंज्यूमर सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में कंज्यूमर रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जिन पॉइंट्स पर सोसाइटी में रिसेंटली कोई डिबेट डिस्कशन हुआ हो, उन पॉइंट्स को रखकर कंज्यूमर के राइट्स, ड्यूटीज़, वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, ये सभी के बारे में और रिसेंट कोई इंफॉर्मेशन और डेटाज हो उनको साथ में कलेक्ट करके मंथली बाई मंथली मैगजीन्स और पीरियडिकल वो प्रेजेंट करते हैं जिसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इन एग्जाम यू मे गेट द क्वेश्चन है ना अंडर द ऑब्जेक्टिव और 1 mark क्वेश्चन दैट विच पीरियडिकल्स or magazines are published in order to bring awareness among the consumer by consumer society. So all these colored names you have to mention. They are helpful in elimination of complaints of consumer। कि अगर consumer इन periodical और magazines को follow करेगा, they will be aware, they will be educated, उनको अपने rights और duties के बारे में पता चलेगा, किस वे में सोसाइटी में और मार्केट में कंज्यूमर के साथ चीटिंग और एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके बारे में भी उन्हें पता चल जाएगा। और इस तरह से जब एक अवेयर्ड कंज्यूमर के रूप में आप मार्केट में जाओगे तो आपके साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस होंगे नहीं। सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस विल मेक द कंज्यूमर वेरी स्ट्रांग। नाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, that is a PDS. Under the PDS or a public distribution system, essential commodities of good quality are provided in fixed quantity at a subsidized rate or discounted rate to the poor at a regular interval from the fair price shops। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 17 में भी डिस्कस किया था और आपके लोअर क्लास में भी इसके बारे में आप पढ़ चुके हो कि पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसमें फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए स्पेशली पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द लोअर इनकम ग्रुप और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वर्कर्स जो है उन्हें बेटर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स बहुत लोअर रेट पे आसानी से मिल पाए और वो खा पी के हेल्दी एक लाइफ जी पाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किया है। Thus, the poor consumer is saved from the exploitation in the open market from where they have to purchase the goods at a high rate of low quality and less weight। PDS system control the corrupt practices of the trader also। और PDS system के थ्रू जब पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस और जो भी अदर प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई किए जाते हैं तब एटलीस्ट पुअर कम्युनिटी और पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनको ओपन मार्केट में चीज़ें खरीदने नहीं जाना पड़ता और वो अपना एक्सप्लॉयटेशन होने से खुद को बचा सकते हैं। सिस्टम सर्टिफाइंग द वेट्स एंड द मेजर्स एंड द प्योरिटी ऑफ द गुड्स। गवर्नमेंट ने आज बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश की है जो मार्केट में इश्यू हो रहे या सप्लाई होने वाले गुड्स की क्वालिटी, उसके कंटेंट, उसके वेट्स, प्योरिटी, उस सभी के बारे में अप्रूवल देकर प्रॉपरली चेक कर फिर उसे मार्केट में इश्यू करने की
राइट्स प्रोवाइड करती है। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन आज मार्केट में है। For health and safety of consumer, government has set up many legal institutes which performs the task of checking the quality, quantity and the purity of produced goods and certified them। कि मार्केट में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो बेटर क्वालिटी के है, प्रॉपर क्वांटिटी में है और प्योर है और उससे कंज्यूमर को कोई हार्म या नुकसान होगा नहीं। इसका अश्योरेंस देने वाली जो लीगल इंस्टीट्यूशंस है वो है Government of India established ISI, that is Indian Standard of Institute in 1947 to regulate the quality. Now since 86 it is known as BIS, that is a Bureau of Indian Standard, जिसमें इंडस्ट्रीज में बने हुए हर एक गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी के बारे में अप्रूवल दिया जाता है। The goods that meet the described standard and the quality are allowed to use ISI mark। कि गवर्नमेंट आईएसआई मार्क यूज़ करने की परमिशन उन्हीं कंपनी को देती है अपने गुड्स पे जिनके गुड्स गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किए हुए या तो आईएसआई ने डिस्क्राइब किए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी में प्रूव्ड हो पाए। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर गिवन द मार्किंग ऑफ एगमार्क विच यू कैन सी हियर इन द गिवन लोगो एज अ येलो वन। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एगमक का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाले गुड्स के क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन एक्ट ऑफ 1937। This scheme is run by the Directorate of Marketing and Intelligence, that is DMI, in the Ministry of Agriculture, Government of India, which grants the permission to the trader to use the egg mark। पर एग मार्क यूज़ करने की परमिशन उन्हें ही मिलेगी जिनके प्रोडक्ट्स में प्रॉपर क्वालिटी, स्टैंडर्ड और प्योरिटी के हिसाब से कंटेंट्स होंगे। If the consumer has any doubt regarding the quality of the marks, he can contact the regional office of the BIS। इंडिया में और इवन पूरे वर्ल्ड में डेफिनेटली ये इशू रहता ही है कि इवन रजिस्टर्ड मार्किंग वाले गुड्स में भी डुप्लीकेट या माल प्रैक्टिसेस हो चुकी होती है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कभी भी डाउट्स लगे लोगों से या ये जो मेजरिंग इंस्टीट्यूट है उनके अप्रूवल से अगर आपको कभी भी डाउट लगे तो आप डायरेक्ट BIS को कांटेक्ट कर सकते हैं। Even the gold ornaments are given the BIS mark along with the purity number, that is 916, which means the quality and the purity of the gold is generated by certain parameters. There are BIS mark, that is a gold number, example 916 depicts 22 karat gold and hallmark logo is given by the central government which shows the year of hallmark। एग्जाम्पल J मीन्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्ड इन 2008। तो जैसे आपको यहाँ पे इमेज में बताया है आपकी ज्वेलरी के इनर पार्ट में वैरायटी ऑफ मार्किंग होंगे जिसमें ईयर ऑफ मेकिंग, ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क, हॉलमार्क जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो, प्योरिटी और फिटनेस लेवल पर वो प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है जैसे कि 22K मीन्स 22 कैरेट गोल्ड का है ज्वेलरी वो बनता है। And finally the BIS standard mark of hallmark। Mark of FPO, that is a fruit product order, is used on jam, fruit juice, fruit or vegetable packed in the tin, etc. BIS also allows the textile, chemical, insecticides, product of rubber, cement, electronic gadgets to use the ISR mark about their purity and quality standards। Other logos or marks which represents what? The wool mark, it is given to the woolen products and the dresses. MPO is given to meat, mutton and product made from them. HACCP, that is a hazard analysis and critical control point, given to the processed food. Eco, it is given to soap, detergent, paper, lubricant, oil, packing material, color chemicals, power coating, battery, cosmetic goods used in place of wood, leather and plastic product by the ISI, presently called as BIS। Now
there are so many organizations at an international level also which gives assurance about the quality and the standard of the goods. Two organizations are working at international level for the standardization of the products. In that, the first one is ISO, International Standardization Organization. Its headquarters is in Geneva and it was established in 1947. Question for objective. The main function is to provide the certification of standard according to the international standard. Example, series of ISO 9000 is given for environment management system by international organization, which is certification of officers and instruction having the high quality. कि अगर किसी प्रोडक्ट पे ISO मार्किंग है तो उसका ये प्रूवन है कि ये प्रोडक्ट ISO के थ्रू अप्रूव्ड हुआ है. ISO के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेज़र करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, वो गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड प्योरिटी उस प्रोडक्ट ने मेंटेन की है. सेकंड, कोडेक्स Alimentarius Commission, that is CAC. This organization was set up to certify the edible products. It is an international organization commission for food. In 1963, FAO, that is a Food and Agriculture Organization, and WHO were also established. And their headquarters is there in Rome, capital of Italy. Its main function is to develop the food standard, guideline and code of practices for the production and the international trade in the food product like milk, milk product, meat, fish, etc. कि अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो मिल्क या मिल्क से बने हुए हैं या मीट या फिश कंटेंट के हैं और आपको वो प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको सेल आउट करना है तो आपके प्रोडक्ट को CAC का परमिशन मिलना चाहिए, या तो FAO या तो WHO से अप्रूवल मिलेगा तो ही वो इंटरनेशनल मार्केट में डील कर पाएगा. द जॉब वर्क ऑफ कॉन्टेक्टिंग ISO इज डन बाय द BIS इंडिया. कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ड्यूटी इंटरनेशनल लेवल पर जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाते हैं उस पर परफॉर्म करती है, सेम वो वर्क नेशनल लेवल पर BIS या तो ISI परफॉर्म करती है. नाउ एट द एंड द मेन क्वेश्चन, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड वेयर. कि एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ कोई चीट, कोई फ्रॉड हुआ है, देन वेयर टू कंप्लेन एंड हाउ टू कंप्लेन, है ना, उसके बारे में अब क्वेश्चन हम देखते हैं. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम अंडर द टाइटल ऑफ 2 to 3 marks. फर्स्ट, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. सो वेरी फर्स्ट अ कंज्यूमर हिमसेल्फ. कि जिस कंज्यूमर के साथ चीटिंग फ्रॉड हुआ है वो खुद पहले तो कंप्लेंट करने के लिए एलिजिबल है. सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज. थर्ड, कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज. Representative of consumer on behalf of consumers on the matter in which it is in the interest of all consumers. 5. Any member of the family of a person who has purchased the product or service with his permission may file a case if there is a shortage of material or services or may lodge a complaint against the losses. So, a person की जो कंप्लेंट करना चाहता है वो कोई इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है, खुद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, कंज्यूमर सोसाइटी हो सकती है. बहुत सारे लोगों के बारे में जब बात करनी हो तो ऑन बिहाफ ऑफ मेनी कंज्यूमर और रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट. और किसी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करने वाले कंज्यूमर के फैमिली में से भी कोई कंप्लेंट कर सकता है. सो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट का आंसर है आपके 1 to 5 पॉइंट्स. If the producer or a trader neither find solution nor show any preparedness to find solution of true, correct and clear complaint, in that case the consumer or his family members may file a case in local district forum, state commission and national commission. कि आपका जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट जब आप रिप्रेजेंट्स करते हो तो जो सेलर या ट्रेडर है जिसने आपको वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड किया था वो उस कंप्लेंट को सुनना नहीं चाहता, आपकी कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करना चाहता, आप उसे इन्फॉर्म करो फिर भी वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहा. इन दैट केस कंज्यूमर खुद
या उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर या कंज्यूमर सोसाइटी है ना, या तो रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, कोई भी आप कितना कॉम्पनसेशन मांग रहे हो उस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हो। जो हमने अभी देखा था कि अगर 20 लाख तक का कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है देन द केस विल गो टू डिस्ट्रिक्ट फोरम। 20 लाख से 1 करोड़ तक का कॉम्पनसेशन है, इट विल गो टू स्टेट कमीशन। एंड 1 करोड़ से अबोव का कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा हो तो कंप्लेंट सीधा नेशनल कमीशन में रजिस्टर्ड हो सकता है। दे मे फाइल अ कंप्लेंट इन सप्लाई कोर्ट, ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी and the consumer court, consumer society or at collector office. That is where to complain. The consumer can file a complaint if the item or service is faulty or deficient or is not in accordance with the agreement or prevent law. कि आप कब कंप्लेंट कर सकते हो? जब आपको जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किया गया, वो गुड्स और सर्विस आपको जब सेल किया तब जो प्रॉमिस किए गए थे या जो एग्रीमेंट बना था या जिस हिसाब से प्रॉमिसेस किए गए थे उस हिसाब से जब प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं करे तब आप कंप्लेंट कर सकते हो। द कंज्यूमर मे फाइल अ केस अगेंस्ट द डेफिशिएंसी इन क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ प्योरिटी ऑफ गुड्स एंड लेस वेट। कि कौन सी चीज़ों के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो कि जब क्वालिटी पुअर थी, जैसा बताया गया था वैसा क्वालिटी नहीं निकला, गुड्स का टाइप आपने जैसा मांगा था उस टाइप का गुड्स नहीं है, उसका प्योरिटी लेवल जैसा बताया गया था वैसा प्योर नहीं है, या तो जितना वेट और मेजरमेंट उस पर लिखा था उतना वेट और मेजरमेंट गुड्स में नहीं है। इन ऑल दीज केसेस यू हैव अ राइट टू डू द कंप्लेंट। A victim may file a complaint in simple and clear language, either typed or handwritten or through a email. जो भी पर्सन कंप्लेंट करना चाहता है वो उन्हें जो भी लैंग्वेज आती हो उस लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से या तो हैंड रिटन या तो टाइप्ड फॉर्म में या तो मेल भेजकर भी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकता है। इफ द विक्टिम गोज टू द कोर्ट थ्रू अ लॉयर देन ही नीड्स अ एफिडेविट। कि अगर आप लॉयर को रिप्रेजेंट बनाकर आप कोर्ट में केस प्रेजेंट करते हो तो आपको अपने कंप्लेंट को पहले एफिडेविट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। In that you have to mention name of the applicant, address, contact number and etc. Write detailed description of the complaint and give the reason for complaining clearly। कि जब आप कभी कंप्लेंट करना चाहो फ्यूचर में तो एज अ कंप्लेनर आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो यहाँ पे बताया है कि आपको जो भी कंप्लेंट करनी है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा कि आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, कौन से रीज़न की वजह से कंप्लेंट कर रहे हो और आपकी कंप्लेंट क्या है, वो पूरा डिटेल में आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से आपको लिखना होगा या टाइप करना होगा। एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द अक्यूसेशन। और जो भी आप कंप्लेंट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको साथ में कंप्लेंट के साथ अटैच करने होंगे। नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस एनक्लोज्ड बिल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। आप जो भी एविडेंस रेडी करो उसका ओरिजिनल कॉपी कभी भी किसी को दे देना नहीं है, वो हमेशा आपके पास होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव दैट एज अ प्रूफ कि यस आई हैव डन दिस प्रोसेस एंड यू नीड अ जस्टिस। कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दोगे किसी को और अगर सामने वाला चीट कर जाएगा तो फिर आपके पास कुछ होगा नहीं शो करने को। सो यू शुड ऑलवेज प्रिजर्व द एक्चुअल और ओरिजिनल एविडेंस विथ यू एंड ऑलवेज सबमिट द जेरोक्सेस। साथ में आपको बिल, उसका पेमेंट जो भी आपने किया होगा उसका रिसिप्ट वो कंपल्सरीली देना होगा। इफ द पेमेंट हैज़ बीन डन बाय चेक देन द अटैच काउंटर और गिव डिटेल ऑफ द चेक। कि अगर आपने चेक थ्रू पेमेंट किया है तो आपके पासबुक में उसकी एंट्री होगी या तो चेक का जो डिटेलिंग होगा वो आपको देना पड़ेगा। एनक्लोज कॉपी ऑफ कंडीशंस मेंशन बाय द सेलर, कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट, प्रॉस्पेक्टस। कि प्रोडक्ट जो आपको सेल किया गया तब क्या क्या प्रोमिसेस किए गए थे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जो आपने फॉलो की थी या पैम्पलेट जो आया था या प्रोडक्ट के साथ कोई साथ में एक्स्ट्रा पेपर था जिसमें प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में बताया गया था और उसने वैसा परफॉर्म नहीं किया, वो सब आपको अपने कंप्लेंट पेपर के साथ जोड़ना होगा। कंप्लेंट मे बी लॉज्ड इन एनी कंज्यूमर फोरम बाय सबमिटिंग द अप्रोप्रिएट फी एज पर द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन क्लेम। कि आप
आपके कॉम्पनसेशन का कितना क्लेम है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। कंज्यूमर मे लॉन्च अ कंप्लेंट विद इन अ 2 year ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजन ऑफ कंप्लेंट। आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसके बाद से लेकर 2 साल तक के समय में आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो। विद इन 2 years, 2 साल तक का आपको मौका दिया जा रहा है। बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंप्लेन एज अर्ली एज पॉसिबल। Any consumer may call on a Gujarat State Helpline toll free number 1800-233-022 or national level helpline number 1800-114-000 for consumer related complaint as well as for special information about the law and guidance। कि एज अ कंज्यूमर आपको जब कभी कंप्लेंट करनी हो, आपके साथ कोई फ्रॉड और चीट हुआ और आपको पता नहीं चल रहा है कि हम किसको इन्फॉर्म करें, किससे गाइडेंस ले, इन दैट केस यू कैन कॉल ऑन दिस गिवन नंबर। दे विल गिव यू गुड गाइडलाइंस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एंड दे विल ऑल्सो guide and show you the path and the way to lodge a complaints. Okay students, so this was finally all about your chapter 18 of social science. I hope the session wise explanation would be helpful to you. Then too, if you have any doubts, you can contact me. Till next session, goodbye and take care.